Hello, welcome to eNotion. We have studied in our earlier videos. We have done the stomach. We are doing nutrition in animals. So in this chapter, now we are going to do next topic, that is small intestine. We have done this also. A small intestine, that was it is a highly coiled structure. Coiled structure होता है मतलब घुमावदार structure. The length of the small intestine is almost 7.5 मीटर. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपके छोटा सा पेट के अंदर होता है वो, और वो देख सकते हैं आप 7.5 मीटर, बहुत बड़ा सा इतना होता है, और वो घुमावदार सा होता है, गोल गोल सा घुमा हुआ सा. Okay, I will show you the picture of a small intestine also, and I have shown earlier in earlier videos that also, but and again I will show. The liver and pancreas release digestive juice into the small intestine. तो जैसा कि लिवर के बारे में भी पढ़ेंगे और पेनक्रियाज, तो ये लिवर और पेनक्रियाज क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं. ओके, देन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस. तो पचाने के लिए, खाने को पचाने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूस जो है वो इनर लाइनिंग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी देता है. So as you can see, this is the stomach by which it is joined with small intestine. This is small intestine. As you can see, this is घुमावदार जो होता है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन से जॉइंट है. ओके, दिस इज द पेनक्रियास which releases the digestive juice to the small intestine. And inner lining, it has the inner lining which also secretes the digestive juice in this small intestine. This is liver, it also secretes, it also releases digestive juice by this way into the small intestine. So next point, the small intestine breaks the carbohydrates into glucose. तो carbohydrates को ये क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, fats into fatty acids and proteins into amino acids. We are talking about liver. The liver, it has a, I have shown you the liver also, and again I will show you what is the liver and how it looks like. It is a gland reddish brown in color. कैसा होता है, gland reddish, लाल लाल कलर का, लाल ब्राउन कलर का होता है. It is known as the largest gland of the human body. Basically ये एक gland है, gland, और largest gland of human body है. अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि what is the which is the largest gland of human body, then you should have to write the liver. It secretes a digestive juice called bile juice. जो ये जूस डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है उसको क्या बोला जाता है, बाइल जूस. सो द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में जो होता है क्या होता है, ये स्टोर होता है. द बाइल जूस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट्स. जितने भी फैट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये बाइल जूस रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेनक्रियाज. It is a cream colored gland present in the human body. It secretes pancreatic juice. ये जो पेनक्रियाज है और ये जो डाइजेस्टिव जूस देता है वो होता है पैनक्रेटिक जूस. पैनक्रेटिक जूस. और ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स में. ये भी किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स में ही हेल्प करता है. कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये तीनों के डाइजेशन में हेल्प करता है. अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फूड को ऑब्जर्व कैसे करता है, एब्जॉर्ब कैसे करता है, किस प्रकार से. तो एब्जॉर्प्शन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड इंटर्स द ब्लड वेसल्स. तो ये एब्जॉर्प्शन जो है ये ब्लड वेसल्स में इंटर करने का प्रोसेस को ही बोला जाता है. डाइजेस्टिव फूड का जब इंटर करते हैं ब्लड वेसल्स में ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. आई विल शो यू द इमेज आल्सो. विली इन द इंटेस्टाइन. हियर इज द villi and the blood vessels. So villi is the blank space. Basically the small intestine contains small finger like structure. ये small finger like structure है, आपकी उंगली देख सकते हैं आप, उसके जैसा ही ये दिखता है, small finger like structure called villi. इसको ही क्या बोला जाता है, villi बोला जाता है इसके structure. Okay, they increases the surface area of the intestine, thereby increasing the amount of absorption. जैसे ही इसका एरिया इंक्रीज होता है ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है.
द डाइजेस्टिव फूड गेट्स इनटू द ब्लड वेसल्स, ये देख सकते हैं आप, दीज आर द ब्लड वेसल्स। तो जैसे ही ये एब्जॉर्ब करता है और वो कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, थ्रू द विली एंड देन रीचेज द होल बॉडी, और उसके बाद आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू दिस पार्ट ऑल्सो। So this is the small intestine where the villi and blood cells through villi, the digestive food uh, goes to the blood vessels. Okay, so next point is the assimilation. Assimilation, the process by which the organs of the body utilize the food, digested food. अब एक बात बताइए, आपने पढ़ाई करी, अब उसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे, एग्जामिनेशन। इसी प्रकार है, फूड डाइजेस्ट हो गया और उसको एसिमिलेट किया जाता है बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे आपके हाथ हो गया, आपके पैर हो गए, मुंह, सब जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, वो सारे क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं डाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस व्हिच द बॉडी नीड्स सच एज प्रोटीन आर कॉल्ड एसिमिलेशन। तो इस एसिमिलेशन की डेफिनेशन ये है, आप सभी को क्या करना है, इसको याद कर लेना है, एसिमिलेशन। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके, सो द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज डिओडेनम। फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है, डिओडेनम। It is the first part of the small intestine whose main function is to initiate the digestive process. The small intestine whose main function is to initiate the digestive process. In this process, the food that enters the small intestine from the stomach is fixed with digestive juice. जैसे ही क्या होता है, आपके स्टमक पार्ट से उसमें जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, it fixed with the mixed with the डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करता है, बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस जो है, बाइल जो है आप जानते हैं कौन देता है, लिवर देता है, और पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियास देता है। इसके साथ मिक्स करके खाने को क्या करता है, आपके खाना जो खाते हैं, दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंस में उसको ब्रोक कर दिया जाएगा। फिर है जेजुनम। जेजुनम, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है ये, मिडल पार्ट है, that contains the villi and hence undergoes absorption and assimilation. तो villi जो आपको मैंने दिखाया था अभी, ये देख सकते हैं, this villi is in second part. Okay, इसी के थ्रू क्या होता है, absorption होता है और assimilation होता है। So jejunum is the second part, middle part basically. Now third part is ileum. Ileum, it is the third and the last part of the small intestine that contains villi-like structure. The ileum absorbs vitamin B12, bile acids and any other nutrients present in the food. This is the work of ileum. Now large intestine. What is large intestine and how it works? Large intestine, any food that is left undigested. आप जब खाना खाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया और जो नहीं डाइजेस्ट हुआ वो क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड तो ब्लड सेल्स में चले जाएंगे और जो डाइजेस्ट नहीं होगा वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे आप होता है ना, खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, जब खाना छूट जाता है तो क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा जाके किसी और को दे देते हैं। ओके, जो आपसे नहीं खाया जाता तो किसी और को दे देते हैं, किसी एनिमल को दे देते हैं, तो वो उसको खा के पचा देता है। तो इसी प्रकार से जब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना नहीं पच पाता है, नहीं डाइजेस्ट कर पाता है, तो दैट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, एंड इट इज अ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज लॉन्ग 1.5 मीटर लॉन्ग। ये कितना मीटर लॉन्ग है, 1.5 मीटर लॉन्ग। अब एक बात याद रखिएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये उल्टा है, आप याद रखिएगा इसको। The main function of the large intestine is to absorb water and salts from the undigested food. जो undigested food होता है उससे क्या होता है, water और salt को क्या करता है, वो absorb कर लेता है, और बाकी बचा हुआ जो चीज होता है undigested food passes through the rectum. rectum के थ्रू वो पास हो जाता है, and digestion the process by which the waste undigested food get out of the body through the anus. तो ये जो anus के थ्रू जो बचा हुआ खाना
हमारे बॉडी से बाहर जाता है, दैट इज इगेशन. नाउ व्हाट इज डायरिया? सो व्हाट इज डायरिया? Diarrhea, basically a condition when watery stools appear frequently, is called diarrhea. For example, food poisoning. Basically diarrhea जो है, जब क्या होता है, watery stools appear frequently. Okay, food poisoning and infection are two main causes of diarrhea. जो फूड पॉइजनिंग, जैसे आप खाना खा लेते हैं, कभी ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, या फिर अन्य प्रकार का कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, दैट कॉज डायरिया, जिसकी वजह से ये दिस इज एक इलनेस, एक बीमारी है, एक डिसीज है, दैट इज ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग एंड इन्फेक्शन. इट इज अ सीरियस डिसीज, ये सीरियस है एंड कैन लीड टू डेथ, और इससे मौत भी हो सकती है इन सेवरल केसेस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव लॉस ऑफ वाटर. क्योंकि इस बीमारी की वजह से बॉडी में वाटर की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी. जनरली ओआरएस दिया जाता है. ओआरएस का घोल सुना होगा आपने, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोला जाता है, विच इज बॉइल्ड cooled water in which a pinch of salt or sugar is added. बेसिकली आप घर पे भी बना सकते हैं ओआरएस. उसमें क्या करना होता है, वाटर को बॉईल करिए और उसमें आपको मिक्स करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ sugar and small amount of salt. Then you should have to boil this. Recommended to the patients maintain the water loss of the body. इससे क्या होता है, जो भी बॉडी में वाटर लॉस होता है वो मेंटेन रहता है. अब देखिए, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है उसका कैसे डाइजेशन होता है. तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, र्यूमेन एंड ऑस्मोफोरस, जैसे हमारे अंदर होता है ना, फूड पाइप होता है, र्यूमेन हमारा स्टमक जैसे होता है, इसी तरीके से इनके बॉडी में भी कुछ इसी प्रकार का ही स्ट्रक्चर होता है. तो र्यूमेन जो है, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. देख सकते हैं आप, दिस इज र्यूमेन, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये क्या है, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये र्यूमेन होता है. ओके, लाइक स्टमक जैसे हमारे बॉडी में होता है. इट ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउस एंड बफेलोस. ये किसके अंदर होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं जितने भी, उनके अंदर होता है. एट फर्स्ट द एनिमल्स डू नॉट च्यू देयर फूड. शुरुआत में वो क्या करते हैं, अपने खाने को नहीं चबाते हैं, एंड इंस्टेड सोलो इट, और ये क्या करते हैं, उसको निगल जाते हैं, बेसिकली सोलो कर जाते हैं डायरेक्ट. दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द र्यूमेन. वो कहाँ स्टोर होता है, इस र्यूमेन पार्ट में स्टोर हो जाता है. ओके, देन आफ्टर कड, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द र्यूमेन इज कॉल्ड कड. जो वो र्यूमेन में पार्शियली डाइजेस्टेड खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो वहां प्रेजेंट होगा, उसको ही कड बोला जाता है. फिर रिमिनेशन, द कड रिटर्न्स टू द माउथ टू दीज एनिमल्स एंड देन दे च्यू इट. फिर वो क्या होता है, वहां से वापस उनके माउथ में आता है और फिर उसको वो चबाते हैं. दिस इज कॉल्ड रिमिनेशन. अब है, बात करते हैं ruminant. The animals that swallow their food at first and then chew it later on are called rumination. Ruminants. तो मतलब जैसे पहले उन्होंने खाना खाया, निगल गए, और वो पेट में वहां गया rumen के पास, और वहां से वापस आया, फिर उन्होंने क्या किया, अपने माउथ से उसको चबाया, देन अगेन वो वापस ले जाते हैं. तो that particle is known as ruminant. Grass eating animals can digest cellulose while several other animals cannot. तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, जबकि और सारे एनिमल्स नहीं कर सकते. दीज एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक दैट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द सेल्यूलोज. बेसिकली क्या है, ये उनके अंदर बॉडी पार्ट में अवेलेबल होता है, जो कि उसको क्या कहता है, हेल्प करता है इन डाइजेशन. ओके, नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. तो ये जब वापस आता है और उसके बाद वो चबा के उसको वापस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक डाइजेस्टिव जूस आता है जिसकी वजह से वो उसको चबाते हैं फिर, और वो आसानी से उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ओके, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा में कैसे खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं. द अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. आप बेसिकली अमीबा को देख नहीं सकते, वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं. This is made up of one cell, और वन सेल होते हैं यूनिसेलुलर. ये चीजें पढ़ा होगा आपने, यूनिसेलुलर. तो वो क्या होता है, अमीबा होता है यूनिसेलुलर. द अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, काइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. तो अमीबा के पास क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, काइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है. विच इज राउंड एंड डेंस, और वो क्या होता है, गोल गोल सा होता है और बहुत ज्यादा डेंस होता है. एंड स्मॉल वैक्यूल्स,
which are like bubbles present all over it. तो देख सकते हैं आप खाने खाने का इसका प्रोसेस क्या है। इस प्रकार से फूड यहाँ पास में आया, धीरे धीरे ये क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको खोलेगा, फिर ये अंदर ले लेगा और फिर धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट करेगा, फिर ये डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर ये फाइनली इसके पेट में पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। So now next point is the amoeba is capable of changing its shape. ये क्या है, अपने शेप को चेंज करने के लिए कैपेबल है, एंड पोजीशन ऑन इट्स ओन, और अपनी पोजीशन खुद से ये चेंज कर सकता है। इट यूजेस फॉल्स टीथ, इसके पास टीथ होते नहीं है, कॉल्ड प्रिस्यूडोपोडिया, एक टीथ होता है जिसको ये बोला जाता है फॉल्स टीथ प्रिस्यूडोपोडिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द दैट पार्ट। ओके, सो टू टेक इन द फूड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, आसपास प्रेजेंट फूड को अपने अंदर लेने में हेल्प करता है। Then it secretes some digestive juice inside the vacuoles, तो फिर इसके अंदर आने के बाद क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किया जाता है, जिससे ये क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। The amoeba then absorb the digestive food and use it, fulfilling different life process such as multiplication and growth। तो ये क्या होता है, अमीबा बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, एक अमीबा से दूसरा अमीबा टूटता होता है, फिर तीसरे से चौथा, इस प्रकार से वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो दिस इज द process of breeding of amoeba, and that's all for this chapter now, and in next chapter we will do the question answer session and some of the fill-ups and objective type questions. So if you are new at our channel, please subscribe our channel, and if you like this video, please click on the like button and share to your friends also. Thank you so much. Thanks a lot for watching this video.